So good morning all, I Dipali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department, welcome you in the lecture of Control System Engineering. So our today's topic is the numerical based on Bode plot. Here the transfer function is given, GH is equal to 1000 into S plus 2 divided by S plus 5, S plus 10 and S plus 100. Okay, so first we have to convert this factor into the 1 plus S form. Okay, so let us take this GH ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1000 एज इट इज आपको रखना है, s प्लस 2 को आपको कन्वर्ट करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है 2 इसको बाहर रखो एंड राइट दिस एज ए 1 प्लस s बाय 2, सो दिस विल बी s प्लस 2. ओके, देन इन द डिनोमिनेटर सिमिलरली 5 बाहर निकालो, 10 5 10 एंड 100 जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, देन दिस विल बी 1 प्लस s by 5, then 1 plus s by 10 and this one is 1 plus s by 100. Okay, so in this way your equations are converted into 1 plus s form in the corner frequency format. Okay, now find out the value of this. So this will be GH is equal to, this is 0.4 in the numerator, 1 plus s by 2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस एस बाय 5, 1 प्लस एस बाय 10 एंड 1 प्लस एस बाय 100. ओके, नाउ वी हैव टू पुट एस इज इक्वल टू जे डब्ल्यू हियर फॉर द रियल पोल एंड इमेजिनरी पोल. ओके, so this equation will be transfer function GS is equal to 0.4 into 1 plus JW by 2 divide by 1 plus JW by 5, 1 plus JW by 10 and 1 plus JW by 100. Okay, now we have to perform the table for the magnitude plot. So here first write down the factor. So first term is the factor, so here the first factor is considered as a constant factor which is in numerator. Then second factor in increasing order is this which is in numerator 1 plus JW by 2. Then next is the this which is in denominator, so this is 1 plus JW by 5. Then this 1 upon 1 plus JW by 10 and this that is 1 upon 1 plus JW by 100. Okay, now find out the corner frequency of all the factor. Corner frequency, so corner frequency for the constant factor is 0. Okay, or we can say which is not applicable. ठीक है, then corner frequency for that factor is 2, corner frequency for that factor is 5. इस फैक्टर के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रहेंगी 10. W के नीचे आपको देखना है कौन सा रियल फैक्टर है. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप. ओके, so slope is having a standard formula, slope is equal to plus minus n into 20, n is the order of a s. okay, तो कांस्टेंट फैक्टर के लिए स्लोप होता है 0, ये कांस्टेंट है इसलिए. ठीक है, इसका s का ऑर्डर 1 है, s का ऑर्डर 1 है, s इज इक्वल टू 1, s ऑर्डर 1 है, s ऑर्डर 1, मतलब सभी में n की वैल्यू कितनी है 1. ओके, देन ये न्यूमरेटर में है तो ये होगा -20, ये डिनोमिनेटर में है तो ये ये न्यूमरेटर में है तो ये होगा +20, ये होगा -20, दिस इज -20 एंड दिस इज -20, क्योंकि सभी में n कितना है 1. ठीक है, न्यूमरेटर फैक्टर रहेगा तो प्लस साइन और डिनोमिनेटर फैक्टर रहेगा तो माइनस. तो ये न्यूमरेटर में है, इसका तो स्लोप होता ही नहीं है, 0 रहता है, और ये सारी तीनों डिनोमिनेटर में. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव स्लोप. ठीक है, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट पे क्यूमुलेटिव स्लोप ड्रॉ करना पड़ता है. तो क्यूमुलेटिव स्लोप कितना आता है देखते हैं. तो पहला क्यूमुलेटिव स्लोप आप एज इट इज रखो 0. ठीक है, फिर नेक्स्ट जब आप फाइंड करते हो तो इसकी और इसकी एडिशन करो. सो 0 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 20, देन 20 प्लस -20 विच इज इक्वल टू 0, देन 0 प्लस -20 इज इक्वल टू -20 and then -20 plus -20 is equal to -20 plus minus -20 which is equal to -40. Okay, so in this way you will get a cumulative slope here.
Now we have to focus on phase angle, that is phi. Okay, so phase is having a standard formula. I told you in the previous numerical, phase having standard formula plus minus tan inverse imaginary pole by real pole. Okay, so for this factor there is a phase angle is जीरो. कांस्टेंट फैक्टर के लिए फेज एंगल हमेशा जीरो रहेगा. ठीक है. देन इसके लिए इसमें ये न्यूमरेटर है तो प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी पोल कौन है यहाँ पे W और रियल पोल कितना है 2. ओके, देन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पोल है W और रियल पोल है 5. ओके, देन यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो दिस इज माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पोल है यहाँ पे W और रियल पोल है 10. ठीक है, ये भी डिनोमिनेटर में है तो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पोल है यहाँ पे W और रियल पोल है यहाँ पे 100. ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट ए phase angle, that is phi. Now for the drawing of magnitude plot we required a starting point. Okay, so there is a standard formula for starting point, y is equal to 20 log of m. ये हम लोग किसके लिए करते हैं, फर्स्ट फैक्टर के लिए करते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, हमारा फर्स्ट फैक्टर है कांस्टेंट, दैट इज 0.4. वी कैन कंसीडर दिस एज ए k विच इज 0.4. ठीक है, तो आप यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 लॉग m के जगह पे पुट करोगे k और k आपका होगा 0.4. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट starting point as -8 dB. Okay, so here we get all the calculation for the magnitude plot and phase plot. तो हमारे पास टोटल कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 5. तो एक फैक्टर कांस्टेंट है, ये इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 2 5 10 और 100. स्लोप है क्यूमुलेटिव स्लोप 20 और -20 और 40, मतलब 20 to 40 के रेंज में ही है. और स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका -8 आया है. और फेज एंगल, तो फेज एंगल का आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन यूर फेज एंगल फार्मूला इज, आपको फार्मूला लिखना पड़ता है. सो दिस विल बी फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स W by 2 माइनस tan इनवर्स W by 5 माइनस tan इनवर्स W by 10 और माइनस tan इनवर्स W by 100. Okay, so this is the standard formula for tan. Here we have to find out the value. So standard value for W, here we consider between the corner frequency. So here we consider W value as 0.01 1 2 5 10 100. ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जितनी होंगी उसके रेंज में आपको 7-8 वैल्यू लेनी है W की. और हमारा जो स्टैंडर्ड फेस एंगल फार्मूला आया था tan इनवर्स W by 2 माइनस tan इनवर्स W by 5 माइनस tan इनवर्स W by 100. ओके, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग W इज इक्वल टू 0.01 पुट करेंगे यहाँ पे, तो वी विल गेट एंगल इज 0.108. ठीक है, फिर हम लोग पुट करते हैं 1 वैल्यू W के जगह पे, तो आई गेट एंगल इज 8.97. फिर 2 पुट किया तो एंगल मिला 10.7. फिर 5 पुट किया तो एंगल मिला -6.22. फिर 10 और सिमिलरली 100. ठीक है, सो इन दिस वे वी विल गेट ए angle for all the W values, consider W values. So here हम लोगों को अभी मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट ड्रॉ करना है. तो आपको सेमी लॉग पेपर कंसिडर करना है. तो सेमी लॉग पेपर पे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे यहाँ पे शो करोगे W की वैल्यू. ठीक है, तो W की वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम की है 0.01 से, तो कंसिडर करो 0.01. इसके बाद आप 10 लाइन काउंट करो और फिर उसके बाद लिखो 1. उसके बाद 10 लाइन काउंट करो लिखो 10. उसके बाद 10 लाइन काउंट करो लिखो 100 एंड 10 लाइन काउंट करके लिखो यहाँ पे 1000. ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. फिर हमारा जो क्यूमुलेटिव स्लोप है दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 20 और 40. तो मैं यहाँ पे एक 0 लाइन कंसिडर करती हूँ. आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट यहाँ पे आएगा 0. ठीक है, यहाँ पे मैं रेंज लेती हूँ +20 और +40. ठीक है, और यहाँ पे मेरी रेंज रहेंगी -20 और -40. ठीक है, सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको डार्क करके रखनी है. तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी नॉट अप्लीकेबल आई थी. सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मेरी 2 थी, तो आई कंसीडर, तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी 2 लाइन है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की, इसको डार्क करके रखना है. फिर नेक्स्ट आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी 5, तो इस लाइन को आपको डार्क करके रखना है.
फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी आपकी 10, तो उसको डार्क करके रखो। फिर आपकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी 100, तो उसको डार्क करके रखो, ठीक है। सो पहला फैक्टर उसका क्यूमुलेटिव स्लोप हमारा आया था, क्यूमुलेटिव स्लोप फॉर फर्स्ट फैक्टर इज 0, और उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉट अप्लीकेबल थी। तो विच स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट हमारा था -8, ठीक है। -8 मतलब ये एक लाइन आपकी 6 की है, तो दिस विल बी कंसिडर एज ए y इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्ट्रेट रहेगा पहला फैक्टर अप टू दी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी 2, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखो 0 dB/डिकेड, और ये फैक्टर है आपका 0.4, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर के लिए आपका क्यूमुलेटिव स्लोप है +20, तो +20 मतलब आपको यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा +20 डिस्टेंस, और उसको एक्सटेंड करना है अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये आएगा आपका नेक्स्ट फैक्टर, और उसका नाम है 1 + JW/2, और स्लोप है +20 dB/डिकेड, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्लोप है 0, और उसको आपको एक्सटेंड करना है अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10। यहाँ पे लिखो 0, सो 0 क्यूमुलेटिव स्लोप, और फैक्टर का नाम है 1/1 + JW/5, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव स्लोप है -20, अगेन आपको नीचे आना है और उसको एक्सटेंड करना है अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फैक्टर का नाम लिखो 1/1 + JW/10, और स्लोप है -20 dB/डिकेड। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव स्लोप है -40, तो -40 डिस्टेंस नीचे जाओ, और उसको आपको एक्सटेंड करना है अप टू द नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ तक। तो ये रहेगा आपका नेक्स्ट फैक्टर, उसका नाम है 1/1 + JW/100, और स्लोप है -40, ओके। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट। अभी आप क्या करना है, ये आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट जहाँ पे भी जीरो लाइन को कट करेगा, ठीक है। तो ये दो जगह पे जीरो लाइन को कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका आपको W फाइंड करना है, ठीक है। तो ये W सपोज यहाँ पे आ रहा है, तो ये होगा आपका गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और सपोज आई टेंटेटिव कंसिडर दिस इज इज 3 रेडियन/सेकंड, ठीक है। सिमिलरली दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये भी वैल्यू आपकी रहेगी, दैट W इज नथिंग बट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और 10 और 100 के बीच में आ रहा है, तो आई सपोज कंसिडर ये 50 होगा, सो दिस इज 50 रेडियन/सेकंड, ठीक है। अभी आपको ड्रॉ करना है फेस प्लॉट। तो फेस प्लॉट में सबसे हाईएस्ट एंगल जो है वो है -127, और लोवेस्ट एंगल है 0.108। तो आई कंसीडर यहाँ पे मैं 0 डिग्री कंसीडर करती, फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे -30, -60, -90, -180, सॉरी -90, -120, -150 और -180, ठीक है। इसमें आपकी ये -180 की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको डार्क करके रखो, ठीक है। फिर 0.01 पे मेरा एंगल आया है, 0.01 पे 0.10, 0.10 मतलब ये यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर 1 पे एंगल आया है 8.97, तो 8.97 आपका होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 पे एंगल आया है 10.7, तो 10.7 होगा यहाँ पे। फिर 5 पे एंगल आया है -6 पॉइंट मतलब यहाँ पे कहीं तो भी होगा। फिर 10 पे आया है -35, तो -35 यहाँ पे कहीं तो भी होगा। फिर 100 पे आया है -127, तो -127 यहाँ पे कहीं तो भी होगा। फिर आप क्या करो, इस जो भी आपके पॉइंट्स मिले हैं उसको ज्वाइन करो, ठीक है, और उसको नीचे छोड़ दो, ठीक है। इसका नाम रहेगा फेज प्लॉट, और इसका नाम रहेगा मैग्नीट्यूड प्लॉट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका लाइन ये वाला जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये जहाँ पे जीरो लाइन पे कट किया है, वही पॉइंट को आप नीचे लेके जाओगे, कहाँ तक, फेस प्लॉट के ऊपर, और ये जो पॉइंट है इसका आप फाइंड करोगे एंगल, ठीक है, फाई एंगल। तो सपोज यहाँ पे 22 आपका फाई एंगल आ रहा है जीरो के ऊपर, तो आई सपोज कंसिडर कि ये +10 डिग्री होगा, ठीक है। और दूसरी जगह पे और कट कर रहा है, तो ये आप एंगल निकालोगे। तो सपोज एंगल फाई होगा आपका -88 वगैरह मैं कंसिडर करती हूँ। तो आपका यहाँ पे फार्मूला बनता है फेज मार्जिन विच इज इक्वल टू 180 + 5। तो फेज मार्जिन 1 इज इक्वल टू 180 + 5 मैं कंसिडर करती हूँ इसको, और 5 इसको। तो 5 होगा +10, सो दिस विल बी 190 मतलब पॉजिटिव। फेज मार्जिन 2 आपका आएगा 180 + 5 दैट इज -88, सो दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आपकी फेज मार्जिन कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है।
फिर आपको क्या करना है, ये आपका जो मैग्नीट्यूड फेज प्लॉट है, ये जहाँ पे भी 180 डिग्री को कट करेगा उसका आप फाइंड करोगे W, दैट इज गेन फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये 100 और 1000 के बीच में आ रही है, तो आई सपोज कंसिडर ये 500 वगैरह रेडियन पर सेकंड होगा, ठीक है। तो ये आपका फेज प्लॉट जहाँ पे भी इस -180 डिग्री को लाइन को कट करेगा वही पॉइंट को आप ऊपर लेके जाओगे, कहाँ तक, मैग्नीट्यूड प्लॉट तक। और मैग्नीट्यूड प्लॉट से ऊपर जीरो लाइन तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आपका गेन मार्जिन। तो ये आई थिंक 40 डिस्टेंस है, तो आपका अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन फेज गेन मार्जिन आता है +40 dB/डेकेड, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जीरो लाइन के ऊपर अगर गेन मार्जिन आती है तो उसको निगेटिव अज्यूम करो, और नीचे आती है तो पॉजिटिव अज्यूम करो। सो हियर इन दिस केस योर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव, सो सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड आउट द बॉडी प्लॉट, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट फाइंड करना है और उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। सो अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन अवर फेज मार्जिन इज पॉजिटिव वैल्यू, gain margin is also positive value. So in this way we can say the system is stable for this type of a transfer function. Okay, so here we stop today. Thank you so much.